ہماری دولت ہو یا ہماری توانائیاں، ہمارے یوتھ، یہ سبھی ایک ہمیں اسے کیسا انویسٹ کریں گے اور کیسا اس کا اجر پائیں گے اللہ کے پاس، یہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔ سورہ عصر کا وہی عنوان ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں، اور اس میں ایکسیپشن اللہ تعالیٰ دیا ہے کہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، وہ ایک خسارے سے بچ گئے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ چار آدمیاں کو ایگزمپشن، باقی پورے خسارے میں ہیں۔ انسان اس کی زندگی جو بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے وہ دنیا میں رکھ کو واپس اللہ کے پاس لوٹتا ہے، اور یہ زندگی کا جائزہ جب اللہ تعالیٰ لیں گا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو پوائنٹاں، 5 پوائنٹاں میں 2 پوائنٹاں اس کی عمر، اس کی زندگی کو انہیں کیسا خرچ کیا، اس کی جوانی اور اس کی پوری زندگی، 2 پوائنٹ اللہ تعالیٰ برابر حساب لے گا۔ تو ہماری زندگی میں ہمیں کیسا اپنے زندگی کو گزارے، اس کا یہ رمضان میں جو 1 مہینہ تربیت ہوئی ہے، روزہ رکھے، نمازیں پڑھے، رات کے نمازیں، تہجد میں اللہ کے پاس کھڑے ہوئے، تو اس کا پورا فائدہ یہ نیکسٹ رمضان تک ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کو ایک ٹیسٹ کہ ہمارے روزے قبول ہوئے، ہمارے قیام اللیل قبول ہوا اللہ کے پاس، اس کا یہ اندازہ ہم کیسا کر سکتے ہیں کہ تو ہماری زندگی میں ایک چینج فار دا بیٹر اگر آ گیا تو سمجھو کہ تمہارے رمضان کے روزے قبول ہو گئے اور تمہاری قیام اللیل اللہ ایکسیپٹ کیا، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر رمضان کے اول جیسے تھے ویسے ہی پھر رمضان کے بعد روزے تھے، قیام اللیل کیے، خرچ کیے اللہ کے راہ میں، پھر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینج نہیں، ویسے ہی جیسے رمضان کے پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں ان کا، تو اٹ از اے بگ کوسچن مارک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کیا یا نہیں۔ تو یہ ایک جائزہ اور یہ ایک کو ہم سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے عبادات اگر اللہ تعالیٰ قبول کیا ہے تو ہمارے زندگی میں ایک چینج ہوگا، اور اگر چینج نہیں ہے، وہی رفتار ہے، تو اسی اس کا چند کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت کو قبول کرے اور ہمارے زندگی کو ایوری ڈے بیٹر ہو، اور ایوری ایئر ہماری زندگی میں تبدیل آئے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بنے، اور جب اللہ کے پاس ہم پہنچے تو اللہ تعالیٰ یہ کر کے ہماری استقبال کرے کہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے عبادت گزار بندوں کے ساتھ چلے جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے زندگی میں، اسی کے ڈائریکشن میں ہم کام کرنا چاہیے، اور اسی کا اسسمنٹ ایوری ڈے ہم سوچنا چاہیے کہ ہمارا آج کا دن ہمارے آخرت کے لیے ہم کیا توشہ تیار کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو بولو خلیل جی۔ وہ اس میں چوک اور ایک چیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ تو میرا دن نہ کہ ایک دن بھی میں فکر کرنا نہیں سنا تھا کہ میں میری ایک دن کا آپ نے کیسا جائزہ لینا نہیں سنا، ایک دن بھی آپ کو فکر نہیں کرنا تھا، وہ بولتے ہیں مطلب کیا کرتے ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو
ایک ایک دن بھی آپ نا جائزہ لیتے تھے، آج میرا دن آپ کو کیسا گیا، یہ نارمل ڈے کے جیسا گیا نہیں، اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت میں گیا بول کو نا وہ جائزہ لیتے ہیں بول کو طریقہ سے، وہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور سر لاسٹ جمعہ جو خطبہ چلا ہے، خطبے میں بھی یہ چیز آپ کو مین بولی گئی کہ آفٹر رمضان ہماری حالت کیا رہیں گی، وہ دیکھنے گئے تو ایک 6 دن 7 دن ہی ہو گئے ہے رمضان، لیکن برابر ایک ویک ہو گیا ہے، لیکن رمضان جا کو ایک برس ویسے کا ایک فیلنگ محسوس ہوتی کہ دیکھے تو بھی ایسا رمضان میں آ کے مسجدیں کیسے تھے بھائی، آباد تھے کیسے تھے، اب کیسے ہی مسجدیں دیکھنے گئے تو کیا ایک 1 ویک کی وجہ سے رمضان جا کو ہے کیا وہ تو سوچنے کے سچویشن جا کو آج ہمارے حالت بھی ہی ہیں تھوڑی، تو یہ رویہ ہمارا چینج ہونا ہے، چینج ہوا تو جا کو ہم ایک تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں، یہ رویہ چینج نہیں کرنے سے ہم تبدیلی کی ہمیں آپ کو ذرا برابر بھی گنجائش نہیں رکھ سکتے۔ ایک مہینہ پورا تو ہم محنت کر کو ہی نمازیں روزہ رکھ کو ہی عبادت کر کو ہی، یہ عبادت ہم کنٹینیو ہونا ہماری، اس کے واسطہ کو ہمیں ہر ایک لمحہ کوشش کرتے تھے نا کہ اللہ کی عبادت میں کیسے رہیں، جیسا ہمیں آپ کو روزے میں ہمارا وقت گزارتے تھے ویسا اگر سے گزارنے لگے تو بس دوسرے کا بھی ضرورت نہیں ہم کو، ہمارا ٹائم ہمارا وقت جو بھی ہے آپ کو مصروف چیزاں میں نہیں سو کہ اللہ کی عبادت میں گزار دو بس، وہ ہم کو آٹومیٹک ہم کو کامیابی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسا رات کی عبادتیں ہیں، تہجد کو اٹھنے کی کوشش کرنا، ہمیں تہجد کی نمازیں پڑھنا، وہ قیام اللیل ہو گیا، رمضان سے آپ کو قرآن ختم ہو جائے گا نہیں، قرآن پھر آپ کو واپس آ کو ہمیں آپ کو دہرانے کی کوشش کرنا، ایوری ڈے ایٹ لیسٹ آپ کو 15 to 20 منٹس قرآن میں اسپینڈ کرنا، ہمیں قرآن کو جاننے کی کوشش کرنا، پڑھنے کی کوشش کرنا، نماز جہاں تک ہے نماز آپ کو ہمیں کوشش کرنا کہ اس کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، الگ پڑھنے کی واسطے نہیں سو جماعت کے ساتھ جب آپ کو اذان کی آواز آتی ہے جیسا آپ کو ہمیں تھے کہ ویسا جب کوشش کرے تو یہ 2 چیز قرآن اور صلاح ہماری یہ 2 چیز اگر کریکٹ کر دیے تو باقی یہ جو سب چیزیں جو ہے آٹومیٹک کریکٹ ہو جائیں گی، تو ہم کو صلاح تھا کو جو ہے ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہم کو، ٹائم پر اگر نماز پڑھنا سکھاتا، اگر تو وہ ہمارا کریکشن ہو گیا تو آٹومیٹک پوری چیزیں کریکٹ ہونے کا چانسز ہے ہم کو۔ امیر اللہ سر رمضان کو بہت اچھا گیا، بٹ افواہ کو دیکھا تو رمضان آئے معلوم ہوگی جیسے معلوم ہوگی، 1 روز 2 روز 4 گھنٹہ تو کیا ہے تمہیں 30 روز چل رہا، اب وہ رمضان چل گا نا وہ کو خود فکر سے گزارنا تھا، میرا پلٹا پھر بولتا ہوں بہت اچھا رہا رمضان میں روزے رکھ لو گھر سو آئے سو کیا بھی ویسا، اب بھی یہ دھوپ ہم پڑھتے سو دیکھتے تو یہ دھوپ میں کیا ہمیں روزے رکھتے ویسا میں جو کیسا ہم اللہ اتنا طاقت دیا رکھنا کہ مسلمانوں کو دیکھے نئے آئے کیسا رہتے ہیں، اتنا تکلیف برداشت کر لو مسلمان اللہ تعالیٰ اس کا نعمت دیا۔ ایک چیز دوبارہ چیز ہے کہ رمضان میں ہاں دیکھتے بھی انڈیا میں اٹھا لے تو مسلمانوں کو تکلیف ملے تو اس میں بہت رحمۃ اللہ کو اول میں شروع ہے سو راجستھان میں، اس کے بعد وہاں جا کو یہاں جا کو کیا ہوگا آخر میں دلی تک آ گیا، اس کے بعد بھی ایسا میسج بھی سنے یا عید گاہ میں یہ لوگ کو روڑا ماں نماز پڑھ یہ لوگوں کو ایسا یہ کرنا تکلیف کرنا لانا کر لو وہ ہٹا کے کسی اللہ بولو گرم سے دعا کرا اللہ مسلمانوں کو حفاظت کرنا ایمان کرنا، اور خود بھی وہ شہید ہو سو لوگوں سے شہید ہی تو میں بول رہا ہوں مرے سو لوگوں سے گھر جلائے دکانیں جلائے ان لوگوں کو بس نہ بس کو دلی میں دیکھو تو 3 اور وہ جائیں گے تو لگا تو گھر دکانوں سے توڑنا شروع کر رہا ہے، مسلمان اتنا تکلیف دیتے ہیں، بٹ حالانکہ وہ لوگوں کا بھی بڑے پیسے والے سے اللہ تعالیٰ ماحول میں وہ لوگ اچھے زندگی کر لو، روز ہی مزدوری والے پلیٹ فارم والے کھانے والے وہ لوگوں کو جس میں تکلیف آتے اللہ دعا کر رہا بٹ وہ پتادر کو ہو گئی مان لی بٹ ایسا نہیں ہے کرے چلو پر کو آنا نہیں سو وہ بھی وہ آیا صبح 100% کو بھی باہر لگ دیا 15-20% آیا سو ابھی 80% آیا نہیں، بہت نقصان ہوتا ہے۔
बट हमें क्या भी उसके बारे में कलेक्शन भी करें हमें उसके बारे में क्या भी हमने एक मैसेज भी आया नहीं क्यों वो तब भी खिदमत कलकत्ता हम लोग करने वाला हमें रमज़ान में बहुत कलेक्शन करको क्यों हम वो है नहीं जमात भी हमने कर दिया चाहिए कि हमारे में रिक्वेस्ट भी करेंगे नहीं फिर हमें से भी एटलीस्ट कर ना वो कैसा करेंगे तो वो महसूस होता है रमज़ान में बहुत सुबह ये तो ज़कात के बस फंड कलेक्ट कर पाऊँ वेस्ट कर होगा वो कुछ तरह को होगा जैसा ऐसा वो एक रमज़ान थोड़ा सा दोबारा अलग फॉलो करूँ जो रमज़ान में कैसा कैसा मैं प्लान करूँगी अगर अलहमदिल्ला अभी भी डालो है बट क्या तो खाना ये ना सिर्फ खा लो बेहतर है वो रोज़ रखो तो अच्छा दिखता है बहुत कंफर्टेबल है यार अब क्या क्या बहुत वेट ऊपर जब उठा लो चला सड़ा दिखता है और रमज़ान में आसान से चलो आसान से इबादत से अल्लाह फॉलो करना से अच्छा रहता अब वो क्योंकि मुश्किल है इसका मेरी बट इतने साल वजह नहीं दिखा और क्या है कहते 2 साल से आपको कोरोना का पीरियड में लॉकडाउन का तो घरा में नमाज इमाम पढ़ा तो ये साल जरा आपको बहुत अपना भी दिल में खुशी के साथ आपको तरह वैसे पढ़ने का वास्ते ना अल्लाह ताला का कामयाब करा लास्ट ईयर 15 रोज़ करे 16वां रोज़ వచ్చి कई साल का है उसके आगे साल 30 डेज में लॉकडाउन में गया ये साल अल्लाह ताला अपना वो एक बड़ा मौका दिया और अल्लाह को शुक्रगुजार करे और अल्लाह ये चीज़ ज़िंदगी इंशाल्लाह और आने वाले ज़िंदगी में अल्लाह तो अपना कामयाब करा लॉकडाउन का तो क्या करो दुनिया मार नहीं सकती चीज़ 2 साल अपना दाल को पकड़ को बेल्ट दाल को बन को आता बन को घर में ऐसा होगा एक बीमारी कर हो गया अगले लगा को ये लोग आर्टिफिशियल करेगी नहीं वो हो पाया कि वो अल्लाह कहते नहीं जाता उसमें इल्म गैब अपना नहीं है अल्लाह जानता हो ऐसा ये साल आपको रमज़ान माह को अल्लाह फॉलो करम से मस्जिद सुबह युवा तरावी में 10 तरावी तक लोग देखो तो पूरा मस्जिद रंगा उसके बाद 11वां 12वां का तो हूँ डायलूट लोग वो चल जाएगा ऐसा नहीं सर ये साल जरा लोगों से भी बहुत इंटरेस्ट है आपको एटलीस्ट 8 रकाती पढ़ लोग चाहते वो जरा मैक्सिमम मस्जिद में देखा मैं यहाँ को अंजुमन में पढ़ा अल्लाह फॉलो करम सा अंजुमन में वैसा रेगुलर अच्छा चल रहे उसमें दूसरा काम भी जाना वास्ता है हमारा बर्तन ऐसे का भी था ना जी हाँ और दूसरा साधन में क्या करने का अल्लाह फॉलो बहुत करे बट वो बोलते ना मैं क्या तो रमज़ान 365 डेज रहती है अच्छा रहना सका है और इतना जल्दी चलेगा ना अपना छोड़ दो मत वो टाइम में नमाज़ पढ़ने का वो ये इंटरेस्ट खुश भी अलग कट रही आप वो भी वो नमाज़ कुछ जाते हैं बट वो रमज़ान में पढ़ा सका वो एक इंटरेस्ट नहीं है तब मालूम होता तब अल्लाह का रहमत हमारे ऊपर रहा यार रहमत रहे आप रहमत अल्लाह उठा दा लिया बोलता ना अल्लाह शैताना हो चंगली दल को बन डाल दो कैसे कहा वो सब भी वो जैसे का मालूम होता वैसा कि नहीं गई लास्ट 2 साल से हम दाल को लॉकडाउन का दल का खोल को छोड़ता मन हमें वैसा रहे कि वो वहाँ डिफ्रेंशिएट करना होता नहीं है वो भी हमें अल्लाह ताला से वो सहार का गिफ्ट दिया इफ्तार का गिफ्ट दिया अलहमदिल्ला जो लोग वो गरीब लोगों को ना था बट अभी ज़रा ज़्यादा तको लोगों को लॉकडाउन में कई साल भी क्योंकि लॉकडाउन में लोग अभी सुधरे नहीं है बसना बस को ये मोला तोला चढ़ा लो को बहुत परेशानी क्या महीने एक दफ़ा गैस का मूल 50 रुपये का पैसा वाला को अमीरा को कहीं मालूम होता नहीं है ये लो क्लास के पीपल है ना कैसा उन्हें देना रत भी सोच नहीं है वो अब 300 एदुर्कक्षा भी वही सारी कुछ 300 मोदी इसमें आने के आगे प्राइम मिनिस्टर आने के आगे 380 रुपये सिलेंडर है 20 रुपये चढ़ाया उन्हें कांग्रेस गवर्नमेंट ये लोग तरस हंगामा का सिलेंडर सिलाम उठा रखा को भाई गाड़ियाँ आलो को 20 रुपये चढ़ाई सकते तमिल से सौंदरराजन एच राजा लक्ष्मण बोलता इन सब भी तमिलनाडु में तरस आज 3 उतना हो गया गैस पेट्रोल डीजल जैसे बेसिक रेट आई ये चढ़िया तो ऑटोमेटिक मोला चढ़ते रहते हैं
ये इसमें आपको बहुत ये होते हैं सफ़र होते हैं लो क्लास kalau kalau saya कैसा उन्होंने करते हैं कि क्या कि उन्होंने भी हमें जरा सूट अभी जरा एक कितना असुविधा लगा जरा ज़्यादा कर रहे जाऊँ अलहमदुल्ला अच्छा कर रहा है बहुत अभी जरा कर रहे जाऊँ बोलता हूँ बहुत जन आगे पूछा हम ना सोता देना मैं नहीं रहता होगा अलहमदुल्ला मैं भी पर्सन से भी करे आप बोल मेरी फैमिली में रस में भी 1 साल से मेरे यहाँ जमात से सीनियर से जुड़े हुए 1 साल हो गए तो बड़ी साबित मुझे सबसे बड़ी साबित पिछले साल में मुझे कुरान से जुड़ने का एक अच्छा मौका मिला मुझे जिसके लिए मैं आप लोगों का तहबीर से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने देखा मैं उसका अहल भी नहीं था लेकिन मुझे इस दर्स के ज़रिए इसकी ज़रूरत इस दर्स की तैयारी के लिए मुझे कुरान से जुड़ने का एक अच्छा मौका मिला और मतलब हम लोग वक्तन फ़वक्तन कुरान पढ़ते थे तर्जुमा पढ़ लेते थे ऐसा रहता था ज़िंदगी में मिला लेकिन मुस्तक़िल तौर पर कुरान की तैयारी और कुरान के लिए पढ़ना वक्त करना वक्त देना और इस तैयारी के लिए मुस्तक़िल तैयारी और अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे मुकम्मल की तफसीर पढ़ने का पूरा पिछले साल में जो है सिर्फ तफ़हीम नहीं बल्कि तदब्बर कुरान से भी और किसी तफसीर से भी मुझे मुताला करने का मेरे लिए बहुत बड़ी साबित है मेरी ज़िंदगी में ऐसा देखूँ तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती मेरी है और इसके बदौलत मुझे बहुत सारे नज़रियात और मज़ीद उसमें वजाहत मिली उसकी सराहत मिली उसमें बात में सफाई कुछ चीज़ें शऊरी तौर पर एहसास कुछ चीज़ें रहती हैं अल्लाह से डरना ये सारी चीज़ें रहती हैं लेकिन जो शऊरी तौर पर नज़रियात का हिकमत का हर चीज़ के पीछे की फ़िलासफ़ी दीन के हर अमल के पीछे की फ़िलासफ़ी समझने का एक मौका मुझे हासिल हुआ उसके चलते मुझे इस रमज़ान में मुझे उस सारे चीज़ को अमल के दौरान मुझे उस सारे नज़रियात को रखते हुए मुझे करने में मुझे शऊरी तौर पर करने में बहुत मुझे लज़्ज़त भी हासिल हुई एक तरह की मुझे अल्लाह से ताल्लुक़ से जुड़ने का एक मौका हासिल हुआ एक बुनियादी नज़रिया ये है कि जब हम लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं तो फ़ौरन हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से जो जुड़ना है तो इसमें सबसे पहले जुड़ने का अपना माबूद से रिश्ता जोड़ने का बेहतरीन तरीक़ा जो है नमाज होती है नमाज एक अलामती तौर पर हम अल्लाह से जो है अपने ताल्लुक़ को जोड़ने की अलामती तौर पर अल्लाह ताला दिन में 5 मरतबा जो फ़र्ज़ कर दिया है कि हम लोग 5 मरतबा अल्लाह के सामने एक माबद के सामने अल्लाह के हुजूर हम लोग हाज़िर होते हैं रुकू सुजूद करते हैं अल्लाह के सामने क़याम करते हैं एक परिस्तिश का एक एहसास दिलाता है वो उस नज़रिए के साथ उस एहसास के साथ मुझे नमाज़ पढ़ने में मेरी मोहब्बत खुशू हासिल होने का एक साबित हासिल हुआ कि अल्लाह के सामने हम लोग खड़े हुए हैं उस परवरदिगार के सामने उस रब के सामने हम लोग मैं खड़ा हुआ हूँ वो एहसास मुझे एहसास हुआ तो नमाज हमें अल्लाह से वो रब्त वो माबूद के सामने जो है या खालिक के सामने हमें खड़ने का वो एहसास दिलाता है उससे रब्त उससे ताल्लुक़ जोड़ने का एहसास दिलाता है इसी तरह रोज़े का मामला ये है रोज़े के पीछे का जो नज़रिया ये है कि अल्लाह ताला जब अल्लाह को हम लोग अपना परवरदिगार मान लिए हैं अपना खालिक मान लिए हैं तो वो मालिक भी है अल्लाह ताला पैदा करने वाला ही नहीं है बल्कि वो मालिक भी है तो मालिक जब होता है तो उसका हुक्म की पैरवी भी रहती है तो उसकी इताअत ज़्यादा ज़रूरी है उस इताअत की तरबियत के लिए रोज़ा रखा गया है इस रमज़ान में अल्लाह ताला हर साल में 30 दिन जो या 1 महीना जो हम लोग रोज़े रखते हैं ये तरबियत का महीना है इताअत का महीना है हम लोग जो चीज़ दीगर दिनों में जो जायज़ चीज़ें होती हैं वो भी नाजायज़ हो जाती हैं हमारे लिए वो भी हराम हो जाती हैं तो अल्लाह ताला बस अल्लाह के इताअत के लिए अल्लाह का हुक्म है बस इसलिए करना कोई और वजह नहीं है अल्लाह भूखे रहने के बोलता है अल्लाह ताला मैदे की भूख के लिए और अपने बतन अरबी में दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए एक मैदे के भूख 2 हॉलो ऑर्गन्स बताए गए हैं एक मैदा है दूसरा रहम है दोनों हॉलो ऑर्गन्स के डिज़ायर्स हैं भूख होते हैं फिटे
फकीह, ये दोनों के परहेज़ करने के लिए अल्लाह ताला बोलता है इस रोज़े में। तो इस तरह से अल्लाह ताला बस इताअत, अल्लाह की इताअत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जो है अल्लाह, मतलब ये एक महीना हमें ये तरबियत करता है कि बस अल्लाह हुक्म देता है तो करो, बस के सवाल चरान के बगैर कोई सवाल के जो है हम एक महीना तरबियत करते हैं। जब ये तरबियत इंसान को हासिल हो जाती है शऊरी तौर पर, तो दीगर 11 महीने हम लोगों को इताअत करने में आसानी हो जाती है। ये तरबियत का सबब था। जैसे रमज़ान जो है हर दिन 5 मरतबा हमें ये तरबियत करता है कि अल्लाह से जुड़ जाएँ, अल्लाह से गफलत ना करें। हम लोग बार बार अल्लाह के हुजूर में हाजिर होते हैं, अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, अल्लाह से दुआ मुनाजात करते हैं। इसी तरह से रमज़ान के रोज़े जो है हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें अल्लाह ही की इताअत करना है, अल्लाह ही की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना है। ये शऊर के साथ जो है रोज़े रखने का शर्फ हासिल है। इसी तरह से जो ज़कात का मामला है, ज़कात के पीछे का नज़रिया भी ये है कि जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है, अपना ताल्लुक़ जोड़ लेता है, तो अल्लाह ताला कुछ कुर्बानी भी चाहता है, अपने माल को कुर्बानी भी चाहता है। क्योंकि हर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अदयान जितने भी हैं, हर दीन में आप देखेंगे कि ये कुछ माल को खर्च करना, कुछ अपने माबद के सामने जो है कुछ अपने कुर्बानी देने का एक रस्म हमेशा रहा है। तो बिगड़ी हुई शक्ल में, बदली हुई शक्ल में, लेकिन दीन का ये पहलू है कि दीन में भी अल्लाह का दिया हुआ माल उसी के राह में खर्च करना, ये तरबियत करता है ज़कात और इंफाक सारा मामला। तो ये वो एहसास को भी दिलाया। तो इसी तरह से दूसरा जो अल्लाह ताला जो है हज का जो मामला रखा है, तो वो भी वही तरबियत करता है। उसका पीछे का फ़लसफ़ा भी है कि उसमें अल्लाह ताला जान की कुर्बानी मांगता है। ज़कात में अल्लाह ताला माल की कुर्बानी मांगता है, और अल्लाह ताला हज के मामले में असल में कुर्बानी का मामला, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आज़माने के लिए जान की कुर्बानी मांगा था इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके लिए भी आमदा हो गए, उसके लिए भी तैयार हो गए। तो वो बस एक अलामती तौर पर जब वो तैयार हो गए तो अल्लाह ताला वो मोहब्बत, वो मतलब वो इखलास के साथ अल्लाह के लिए अपना सब कुछ निछावर करना, अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए जो तैयार हो गए, तो अल्लाह ताला वो अदा पसंद आ गए, और इसलिए हज फ़र्ज़ भी कर दिए गए। और वही अलामती तौर पर हम लोग जाने के बाद वहाँ पर कुर्बानी अदा करते हैं। और यहाँ के रहते हुए हर फ़र्द जो है, जो भी इस्ताद करता है, वो माल जानवर को कुर्बानी कर देता है, लेकिन असल में ये जो कुर्बानी हमें जो दावत देती है, वो इस चीज़ की होती है कि हमें अपनी जान जब वक्त आता है, जब ज़रूरत पेश आती है, तो हमें जिहाद के लिए भी तैयार होना है, अपनी जान के लिए भी अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए हमें हमेशा जो है तैयार होना है। वो उसे एहसास दिलाने के लिए ये हज का भी एक इसका फ़लसफ़ा है। तो मुझे इस नज़रिए का जो एहसास हुआ, तो उस एहसास के साथ इस रमज़ान में अपनी इबादतों को गुजारने में एक तो मुझे वो शर्फ हासिल हुआ, और मुझे वाकई मुझे असल चीज़ मुझे कुरान से जुड़ने का और कुरान के नज़रियात को समझने और उस पर गौर करने और उस पर तदब्बुर करने का जो है एक सिलसिला मुझे शुरू है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे अपने ज़ात के लिए, मेरे लिए फ़ायदा हुआ, और मैं आप लोगों का, तमाम लोगों का इस मौके में आप लोगों के लिए दुआएँ भी करता हूँ। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे मैं अपनी ज़ात के साथ हक़ अदा करूँ और कुरान हक़ अदा कर पाऊँ, और इस पर जो है अमल करने के लिए और लोगों के लिए मैं हक़ बात बयान करने के लिए अल्लाह ताला मेरे ज़बान में वो सलाहियत दे। तो बस यही चंद चीज़ें थी जो मैं आपके सामने अगर रखना चाहता हूँ, तो यही रखना चाहिए।